तो चलते अब एक और नए मैच की तरफ। विहान मित कुमार सोना देवी टीमघर बनाम राजस्थान रॉयल्स। टॉस जीता है सोना देवी विहान मित कुमार टीमघर टीम के कैप्टन ने पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। दोनों टीमों का ये पहला मुकाबला है बीपीएल के इस दूसरे संस्करण में। पहली गेंद प्रथमेश ठाकरे द्वारा बैट का फेस खोलते हुए खेला है बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन उसके बावजूद भी एक रन लेने में कामयाब हुए कुणाल म्हात्रे। कुणाल और उनके साथ आए हैं आइकॉन प्लेयर कामरान खान। Remind you are watching the match between Rajasthan Royal and Sona Devi Vihan Mit Kumar. Remind you, Sona Devi won the toss and elected field first over in progress. To openers on the ground, Kunal Mhatre, KM and Kamran Khan. These two are the opener. Voice of India, Harish Pandya joining me in commentary. Oh, beauty, what a ball. Kamran in trouble, tried to push that ball by signal from umpire. 1-2 score now, score moves up to 2 without loss. Welcome, Voice of India, Harish Pandya joining me in commentary. You are watching afternoon session in BPL season 2. Prathamesh Thakre, man from Wadet. What a great player he is. This time uses feet, but he stayed too long on. And with the stroke, KM gets one. This is the slow start, I think, from Rajasthan Royal. Harish. Definitely, it's a slow start, but a cautious start as well. Because it's a long format, you are going to play against the remaining 5 teams in your group. Everyone wants to take baby steps to move towards the bigger steps, and that's what is to be seen. This time very awkwardly played, but overhead of Kasim Babu for 4. The bat and overhead of mid-off for 4. First boundary from Kamran Khan. This time put away, nice stroke. Straight down the ground, calculated 6. Pad. Fantastic hitting by Kamran Khan, a veteran in this tennis ball and leather ball cricket circuit. This time not a very good stroke played earlier. Ball is coming little bit late on the bat. Travis to me down. Raju Boga is there. And that marks end of the first over. I think Rajasthan Royal good start now. 14 without loss. Score is 14. Kamran Khan playing on 11 of 4 and Kunal Mhatre playing on 2 of 2. Prathamesh has finished the first over, giving away 13 valuable runs. Although Rajasthan Royals, of course, they have got an excellent player in Kamran Khan, who is again an all-rounder representing at All India level, icon player. And it will be interesting to see how the fielding side is going to utilize their All India player as an icon in this contest, because Kamran Khan has struck the right chords and he is looking in the rhythm, and somewhere they will have to put brakes on this ever mounting score. एक ओवर की समाप्ति 14 रन। आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर लीग भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। BC4 कमेटी, अल्ताफ बाली उनके प्रेसिडेंट, BPL चेयरमैन संजय म्हात्रे और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से मुकाबला चलता हुआ
महबूब गौरी फैम टीम राजस्थान रॉयल और रोहित चौधरी और दिनेश चौधरी फैम टीम सोना देवी बियान मित कुमार के बीच में। खेल की शुरुआत गेंदबाजी में कासिम बाबू, सामना करेंगे बैट्समैन कामरान खान। हाजी समझ सेट स्टैंड से गेंदबाजी के लिए कासिम बाबू तैयार। कासिम बाबू लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, उछाल दिया सीधा और पूछ लिया कासिम बाबू से कैसनबा, नो बॉल। कमाल का शॉट डाउन द ग्राउंड। कामरान खान बहुत अच्छे लय में नज़र आ रहे हैं और इसके पहले वो इस मैदान पर खेल भी चुके हैं कई साल पहले, और एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी, कामयाबी की दास्तान जो टेनिस क्रिकेटर्स आगे बढ़ के IPL खेले या T20 लेदर बॉल खेले, उसमें का एक खिलाड़ी कामरान के रूप में हम देख रहे हैं। और कामरान ने जिस तरह से शुरुआत की है, ये वाकई में लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन परेशानी का सबब बना हुआ है। कासिम बाबू को ज़्यादा कुछ करने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये लूजनर बॉल थी। अगली जो गेंदें हैं वो मायने रखेगी कासिम बाबू के लिए। फ्री हिट है कासिम बाबू, अच्छी वापसी, वाइड यॉर्कर, पैर नहीं चले थे, हालांकि फ्री हिट था। देखिए कामरान खान का भी ताल्लुक यूपी से है और कासिम बाबू का भी। अब एक दूसरे से कौन पूछता है कैसनबा और कौन पूछता है अच्छनबा। कासिम बाबू, लेकिन सिद्दीक भाई जब तक आप है सब कुछ ठीक बा। थैंक यू सर। स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छा लगा रहे हैं, सीधे प्लेट से अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं कामरान। ओह, स्विंग एंड मिस, वाइट। अंपायर फारूक बर्डी का वही माइकल जैक्सन स्टेप। देखिए बॉलीवुड में शाहरुख और अंपायरिंग में फारूक, इसका कोई जवाब नहीं है। क्या बात है। लेकिन इस सीज़न में मैं पहली मर्तबा उनको अंपायरिंग करते देख रहा हूं। कासिम बाबू, पटकी भी गेंद, अपर कट की कोशिश, ऊपर लगी है और आउट हो गए। बहुत बड़ा विकेट। IPL भी खेल चुके थे लेकिन BPL में सक्सेस नहीं, और आउट होने से पहले हालांकि अच्छी बल्लेबाजी की, 17 रन बनाए और 6 गेंदों का सामना किया। ज़रूर है प्रेरणा को पूछना होगा कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन IPL एंड BPL। मेरा मानना है वो लेदर का IPL है, ये टेनिस का BPL IPL है। जुड़ते हुए साइड लाइन पे प्रेरणा गुप्ता से। Wow, what a game. How are you feeling? Yeah, good. I'm good. Feeling good. How do you think, where do you rate your performance from 1 to 10? Yeah, actually बहुत डिफरेंस है। अभी मैं कंटिन्यू लेदर से खेल रहा हूँ, इसकी वजह से थोड़ा सा। तो ये IPL और BPL में ये डिफरेंस है कि आप क्या कहना चाहते हैं, क्या डिफरेंस है? बहुत बहुत बड़ा डिफरेंस है एक्चुअली, मतलब बट टेनिस के हिसाब से ये IPL इज़ द गुड, बट वो IPL इज़ द ग्रेट मैचेस, ग्रेट टूर्नामेंट। बट ये भिवंडी के हिसाब से या टेनिस, ऐसे टेनिस बोल सकते तो टेनिस के हिसाब से बहुत बड़ा मैच है ये। बहुत बढ़िया बात है। बहुत प्यारा मुझे स्टेडियम लग रहा है आज का, जो सजाया गया है एकदम दुल्हन के जैसे। आपको कैसा लग रहा है? एग्जैक्टली, बहुत 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 बढ़िया है ये स्टेडियम सजाया गया है, काफ़ी मेहनत हुआ है इसमें। मज़ा आया खेल के आपको? बिल्कुल, अभी आउट हो गया इसलिए ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच में और मज़ा आएगा। जी शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हैं। थैंक यू प्रेरणा, बहुत अच्छा ओपिनियन दिया। IPL का जो प्लेटफॉर्म है वो लेदर में जिस तरह मशहूर है, BPL टेनिस में। कासिम बाबू, ओ अच्छी गेंद, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर पंच करते हुए कवर में 1 रन। नए बैट्समैन आतिश गोडविंदे आए हैं, बेस्ट पुलर हैं। ये दिखाया जा रहा है डगआउट को महबूब गौरी, इम्तियाज बापा, गोल्डन आर्म्स ऑफ भिवंडी और पूरे खिलाड़ी इस वक्त नजर आ रहे हैं। हुक करने की कोशिश, अंपायर साइड में हुए, दोनों हाथों को खोला वाइट।
स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 पे पहुंचा है। दूसरा ओवर चलता हुआ, अच्छी बॉलिंग आप कर रहे हैं कासिम बाबू। ओ बढ़िया गेंद, टिप्पा खाने के बाद कांटा बदला था, रफ्तार भी पकड़ी थी और ये देखिए आगे रखा था, क्या स्विंग हुई गेंद। कासिम बाबू का अच्छा हाई आर्म बॉलिंग एक्शन है और जो पहली लूजनर बॉल थी अगर उसको निकाल दिया जाए तो बहुत अच्छी निरंतरता के साथ गेंदों को अच्छा पिच करा रहे हैं कासिम बाबू। उछाल दिया गेंद को, हाई एंड हैंडसम, आउट ऑफ पार्क, 6 रन। ये कुणाल मात्रे, इनका अपना स्टाइल है हरेश। ये देखिए जा रही है जा रही है जा रही है, सजनी गई साजन के घर। हाई एंड हैंडसम, नीट एंड क्लीन पिकअप जिसे कहते हैं। बल्ले के बीचों बीच जब गेंद लगी तो उस पर मोड़ थी, इस टाइम था 6 रनों का। स्कोर उछलता हुआ अब 31 रन। क्या कहेंगे हरीश मैंडेटरी पावर प्ले के 2 ओवर के बारे में? 2 ओवर काफ़ी अच्छी बैटिंग रही है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स टीम की। कामरान खान ने अच्छी शुरुआत करके ली, 17 रन बनाए और अब कामरान के अलविदा होने के बाद जो 2 इस वक्त मौजूदा बल्लेबाज है उसमें कुणाल मात्रे जिनके पास एक बहुत विशाल अनुभव है और वो बहुत अच्छा स्ट्रोक प्ले दिखाते हुए, जो कासिम बाबू को उन्होंने इनफैक्ट 6 लगाया वो वाकई में लाजवाब था। बॉल आसमान में हिलकोरे खाती हुई चली गई थी। तो पहले 2 ओवर में ज़्यादा बड़ी सफलता नहीं मिली, एकमात्र कामरान खान को आउट कर पाए हैं इस वक्त सोना देवी विहान मीत कुमार, लेकिन बचे हुए 4 ओवर जो हैं उसमें वापसी करने का डेफिनेटली प्रयास किया जाएगा गेंदबाजों द्वारा। Yes sir, do you think this is the good start, flying start from Rajasthan Royal in mandatory power play, because on the board 31 for the loss of Kamran's wicket? राजस्थान रॉयल का वाकई में रॉयल स्टार्ट है, जो अगर आप राजस्थान में चले जाएं तो बोलते हैं पधारो सा, पधारो मारे देश, और बिल्कुल वैसा वेलकम किया है राजस्थान रॉयल ने यहाँ पर सोना देवी विहान मीत कुमार टीम का। और जो खेल अभी तक हुआ है पूरा क्रेडिट अब तक बैटिंग करने वाली टीम राजस्थान रॉयल को जा रहा है, लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर वापसी बहुत जल्दी हो जाती है। तो अब राजू बोगा जो कि भिवंडी का एक सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म गेंदबाजों में का एक जिनका नाम शुमार होता है, उनकी गेंदबाजी यहाँ पर निर्णायक रहेगी इस स्टेज पर। बॉन्डर ऑफ भिवंडी राजू बोगा हैं। आने वाले बैट्समैन में लॉइन ऑफ मानकोली दीपेश माली का आना बाकी है। देखना है कि आज वो कितना सरदर्द बनते हैं गेंदबाजों के लिए। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, सामना करेंगे आतिश गोडविंदे। लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, अच्छी गेंद आगे रखा था, ड्राइव किया कारपेट के जरिए, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर 1 रन। जीशान सिद्दीकी थे वहाँ पर, 1 रन बनता हुआ। फैजान सिद्दीकी कमाल की बल्लेबाजी, BC4 फॉर्मेट का 1 मैच 31 रन। यहाँ पर स्कोर ज़रूर 32 हुआ है। राजू बोगा राउंड आर्म गेंदबाजी के लिए काफ़ी जाने जाते। ओ बढ़िया गेंद कट के बाहर गई थी, जगह नहीं थी शॉट खेलने के लिए। पंच किया कवच में 1 रन। 33 पे पहुंचा है स्कोर। लंबा बैटिंग लाइनअप है और कप्तान उजैर मोमिन, देखना है कि क्या रणनीति यूज़ करते हैं। राजू बोगा इस मरतबा फिर से जगह नहीं थी, लेकिन अच्छा पंच कवर्स की जानिब, दूसरे की कॉल, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन। देखिए राजू बोगा ने अब तक बड़ा स्ट्रोक नहीं खेलने दिया और ये वजह भी है कि जहां 1 है उसको 2 में और 2 को 3 में तब्दील करना होगा, क्योंकि रन निरंतरता के साथ बनाते रहना ये प्राथमिकता रहेगी रॉयल्स की। और इस वक्त ये ओवर में अब तक राजू बोगा ने 3 बेहतरीन गेंदें की है, महज 4 रन दिए। सबसे बड़ी बात है कि जगह नहीं दी है, लाइन ऑफ अटैक इतना एक्सलेंट है, ऑफ स्टंप उसके करीब गेंदों को रख रहे हैं।
वैसे भी इस विकेट और इस ग्राउंड के हमेशा के एवर हिट बॉलर रहे हैं, हालांकि ये सीज़न जो BC4 का है उसमें वो उतने सफल नहीं है, लेकिन कहा जाता है क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पररी। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, फिर से अच्छी गेंद, फिर से केवल पंच कर रहे हैं, 1 रन, इसे कहते बॉलिंग। नहीं, डेफिनेटली, खास करके जब आपके अन्य गेंदबाजों को ज़्यादा रन खर्च हुए हैं। राजू बोगा इस तरह की टाइट लाइन पर गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाजों को मेहनत करनी होगी अगर मेरे सामने रन बनाने हैं तो, वो संदेश उन्होंने अपनी पहली 4 गेंदों में दिया है। लगता है कि कमर कस लिए राजू बोगा ने BPL के लिए, कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। फ्लाइट दिया, आसमान में तान दिया, नो बॉल है और 2 रन। ये सीजन में ये इनके साथ लगा हुआ है, और स्टेपिंग और जो रिटर्न क्रीज है उसको वो हमेशा बाहर चले जाते हैं। बहुत ही अनयूजुअल बॉलिंग रनअप है राजू बोगा का, और ऐसा करते समय जब वो अपने दाहिने पैर को लैंड करते हैं, जो उनका फ्रंट फुट है उस पर वो नियंत्रण नहीं रख पा रहे, और उसका नुकसान, एक इतना अच्छा ओवर चल रहा था और अचानक उसमें वो नो बॉल पर आते हुए एक्स्ट्रा रन अब थोड़ा सा मजबूती देते हुए बल्लेबाजी करने वाली राजस्थान रॉयल्स को। राजू बोगा फ्री हिट है, कुणाल मात्रे अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक सिक्सर भी जड़ा है। अच्छी गेंद आगे रखा था, बल्ले की जड़ से टकराई, शरीर से टकराई, पॉइंट पे चली गई, 1 रन बनता हुआ स्कोर में। स्कोर 40 रन 40। ओवर नंबर 3 चल रहा है। हालांकि एक ज़माना था जब राजू बोगा गेंदबाजी को आते थे तो बैट्समैन सोच में पड़ते थे कि आप क्या होगा। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जा रहे हैं, फील्ड की जमावट, शॉर्ट थर्मेन, शॉर्ट फाइन लेग और एक्स्ट्रा कवर, घेरे में, हवा में गेंद, विकेट कीपर कोशिश, ओ बढ़िया एफर्ट, बहुत दूर चले गए थे स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे, लेकिन कैच नहीं लपक पाए। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 42, 3 ओवर बचे हैं और BPL में पहली मर्तबा इस 3 ओवर में कमेंट्री करेंगे। कमेंट्री की जान मजहर खान और उनका साथ निभाएंगे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। 3 overs 42 runs, 1 wicket. Kunal Matre not out on 13 and Atish not out on 7 of 5. Raju Boga 1 over 11 runs. आइए मजहर भाई, आपका स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा समालोचक मजहर खान। थैंक यू भावेश सर, थैंक यू हरीश सर। BPL 2021 जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है, बढ़िया मुकाबले अब तक हमने देखे रहे, बहुत बढ़िया तरीके से सभी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है। हरीश सर, जिस तरह से हमने पहले मुकाबले में देखा, उसके बाद दूसरे मुकाबले में हमने जिस तरह से बल्लेबाजी देखी है, मैं अल्ताफ बाली सर का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने एक बार फिर से मुझे मौका दिया है। बाली ट्रॉफी 2018, 2019 और 2021 लगातार 3 साल बाली ट्रॉफी, और उसके बाद पिछला सीज़न जो रहा था BPL का, उसमें भी मुझको मौका दिया और एक बार फिर से इस BPL में मुझको मौका दिया। मैं एक बार फिर से अल्ताफ बाली सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मौका जब मिलता है तो उसका उपयोग मजहर भाई आपने अच्छे से किया है। तो इस वक्त जो परिस्थिति है, 3 ओवर 42 रन, 14 का रन रेट चलता हुआ आप देख रहे हैं। BC4 और अल्ताफ बाली द्वारा प्रस्तुत भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2, और इसके आयोजक है BC4 और पायनियर स्पोर्ट्स, जो लगातार दूसरे साल आपके सामने ये बढ़िया प्रतियोगिता लेकर आ रहे हैं। हमारे जो दर्शक अभी अभी प्रिंस मूवीज़ के इस सीधे प्रसारण से जुड़े हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक YouTube पर देख रहे हैं, जो मैदान में उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। आप सभी से एक प्रार्थना है कि अपने मास्क को पहने रखें और एक ज़रूरी जो दूरी है आपस में वो बनाए रखें और क्रिकेट का मज़ा लेते रहें। तो आज के दिन सुबह हमारे इस साल के
भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 के चेयरमैन सम्मानीय संजय म्हात्रे साहब, इनके हाथों उद्घाटन हुआ और परिंदों को आसमान में छोड़ा गया। ये बेहतरीन इनॉग्रेशन सेरेमनी होने के बाद सुपर 6 का हमने एक टूर्नामेंट देखा। ये बिल्कुल संजय म्हात्रे जी, लायन ऑफ भिवंडी। अल्ताफ बाली और BC4 का ये एक बहुत अच्छा काम रहता है, हर साल एक चेयरमैन को चुना जाता है, वो एक सम्मान है। संजय म्हात्रे जी ने जो क्रिकेट की खिदमत की, बतौर क्रिकेटर खेले भी, क्रिकेट उनकी टीम है महेंद्र स्पोर्ट्स, महेंद्र कल्याणकारी संस्था जो अच्छा कर रही है, और आज हमारे चेयरमैन के रूप में वो हमें मिले, ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जी बिल्कुल हरीश सर, जिस तरह से हमने देखा ऑक्शन के दिन भी जिस तरह से उनका स्वागत हुआ था वहाँ पर, तो खेल की एक बार फिर से शुरुआत होती हुई चौथे ओवर में कासिम बाबू को बुलाया गया है। हम ये लगातार दूसरे साल देख रहे हैं कि सोना देवी विहान मोहित कुमार के लिए लगातार दूसरे साल वो आइकॉन प्लेयर बनकर आए। एक बार फिर से यहाँ पर उनके ऊपर भरोसा जताया। देखना अब दूसरे ओवर में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं यहाँ पर कासिम बाबू। पहली गेंद वहाँ स्विच हिट खेलने की कोशिश की थी KM कुणाल म्हात्रे ने, बढ़िया गेंद वहाँ पर डॉट गेंद के साथ इस ओवर की शुरुआत करते हुए कासिम बाबू। एक नेचुरल एंगल है, प्राकृतिक कोण जिसको कहा जाता है, और कासिम बाबू उसमें महारत हासिल किए हुए हैं। इवन उनके पिछले ओवर में भी हमने देखा कि जो 6 लगा वो ओवर पिच बॉल पर था, लेकिन गेंदों को जब पिचअप कराया कासिम बाबू एक अलग गेंदबाज नजर आए। तो पहली गेंद पर बिंदी गेंद, और यहाँ पर अब देखना होगा कासिम बाबू अगला गेंद कैसे करेंगे। इस बार हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, वहां पर हुक करने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी आते हुए अभी कोई गलती नहीं और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर। पीछे मारा जग जिस पर उन्होंने कामरान खान का विकेट लिया था, बिल्कुल वैसी ही गेंद अवे फ्रॉम द बॉडी, लेकिन फर्क इतना था कि कामरान खान ऑफ साइड में खेलने गए थे, यहाँ पर बल्लेबाज ऑन साइड पर खेलने गए और आउट होकर वापस लौटते हुए यहाँ पर बैट्समैन कुणाल म्हात्रे, बड़ा विकेट फांसा है कासिम बाबू ने, और गिरने वाले दोनों विकेट जैसा आपने बताया कि दिनेश चौधरी और रोहित चौधरी ने। वेलकम वेलकम वेलकम। हाउ डू यू रेट योर परफॉर्मेंस? कैसा लगा आपको अपना परफॉर्मेंस? टीम अच्छी कह रहे हैं, रन बनेंगे, बस रन बनेंगे। आपको क्या लगता है कितना आप टारगेट दे पाएंगे? अभी अभी तगड़े बल्लेबाज है, बहुत रन बनाएंगे। बहुत रन बनाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत ही उत्साह के साथ खेलते हुए हमारे सारे खिलाड़ी। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। तो नए बल्लेबाज आ रहे हैं दीपेश माड़ी। मजहर खान, एक और योगा योग ऐसा है कि आज से 3 साल पहले प्रेरणा गुप्ता और दीपेश माड़ी का जो इंटरव्यू था उसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया था, और वही दीपेश माड़ी अब यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर दूसरा विकेट गिरा है और अब दीपेश आए बल्लेबाजी के लिए। बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर कासिम बाबू की, पहली गेंद आउट और उसके बाद दूसरी गेंद पर एक बड़ा विकेट हासिल किया है कुणाल म्हात्रे के रूप में। स्कोर हम देखें तो अभी भी रुका हुआ है 42 रन, 2 विकेटें गंवाने के बाद राजस्थान रॉयल इस मैच में पहले बल्लेबाजी करती हुई। इस बार सामना करेंगे वहाँ पर आतिश। एक और अच्छी गेंद वहाँ पर देखना है, फिर से मिस टाइम स्ट्रोक, अपने फॉलो थ्रू में वहां पर कैच को समाप्त करना चाहते थे गेंदबाज कासिम बाबू, और उसी बीच मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली यहां पर, और बड़ा विकेट गिरता हुआ यहां पर दीपेश माली के रूप में।
कमाल की गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है कासिम द्वारा। इस बार शॉर्ट गेंद हुक कर दिया इस गेंद को और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक वहां पर आतिश के बल्ले से आता हुआ। हॉट तेरे मैनर नी छपते ते थी और स्कोर हो गया 50। बल्लेबाजी हो रही है झकास। और बुर्ज खलीफा से याद आया कि अगर गेंदबाजी में नियंत्रण नहीं होगा तो रनों का बुर्ज खलीफा बनेगा, जो पहले दोनों मैचेस के पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने बनाया। तो यहाँ पर आगरी राजा पोगाव जो टीम ने टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया, इस वक्त 4 ओवर 50 रन और 3 विकेट। अल्ताफ 2 बॉल 1, आतिश 7 बॉल 14, कासिम बाबू 2 ओवर 25 रन 2 विकेट। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि यहाँ पे रनों का बुर्ज खलीफा बन सकता है, लेकिन पहले मुकाबले हमने देखा था कि जिस तरह से केतन मात्रे ने सर बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक लगाया पहले मुकाबले में। और जब भी यहाँ पर हम टूर्नामेंट देखते हैं, खास करके हमने बाली ट्रॉफी जब देखा था पहले मुकाबले में शुमाइल सूसे ने अर्धशतक लगाया था, और अब बीपीएल में हम देख रहे हैं कि पहले मुकाबले में केतन मात्रे ने अर्धशतक लगाया। राजू बोगा को एक बार फिर से गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है। 4 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 50 रन 3 विकेटें गंवाने के बाद कासिम बाबू ने अपने 2 ओवर के कोटे में 25 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट हासिल किए उन्होंने। एक बार फिर से यहाँ पर अब राजू बोगा को बुलाया गया है। राजू बोगा की हम बात करें तो पहले ओवर में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी, 11 रन आए थे उनके ओवर में। एक बार फिर से आते हुए सामना करेंगे वहाँ पर खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख। इसके बाद जो मुकाबला हम देखेंगे बालाजी ग्लोबल्स और आगरी राजा पोगाव के बीच में अगला मुकाबला हम देखेंगे। अच्छी गेंद वहां पर बोल्ट, विकेट गिरता हुआ यहां पर और अल्ताफ शेख की पारी समाप्त। And now for my next number, I'd like to राजू बोगा की परफेक्ट यॉर्कर, ये उनकी स्टॉक बॉल है। इसका असरकारक इस्तेमाल पिछले 12-15 सालों से राजू बोगा को करता हुआ हम देखते आ रहे हैं। भिवंडी में, इवन भिवंडी के बाहर भी जो ओपन टूर्नामेंट्स उन्होंने खेले, और एक बेहतरीन विकेट। और यहाँ पर अब प्रेरणा से जुड़ते हुए बैटर जी, ये निकलते हुए सामने से बिल्कुल अपने परफॉर्मेंस से बिल्कुल ही नाखुश दिखाते हुए अपने आप को, और ओवर द कमेंट्री बॉक्स। बिल्कुल प्रेरणा आपके बाजू से वो गुजरते हुए चले गए। कोई बात नहीं, कुछ खिलाड़ी इंटरव्यूज देंगे। 50 for 4 वैभव पाटिल नए बैट्समैन है। वैभव माली इस वक्त आए हैं, जबकि बहुत बढ़िया गेंद के ऊपर बोल्ड हो गए थे वहाँ पर अल्ताफ शेख। बहुत कमाल की गेंद रही थी, अनप्लेबल गेंद रही थी वैभव माली। स्कोर हमने अभी भी देखे तो 50 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद उसी बीच एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना है। इस बार एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है राजू बोगा द्वारा। राजू बोगा लय में आ चुका है। सबसे बड़ी बात राजू बोगा की है कि वो क्रिकेट थोड़ा कम खेल पा रहा है, लेकिन जो भी खेलूंगा गुणवत्ता भरा क्रिकेट खेलूंगा। टूर्नामेंट की क्वांटिटी से ज़्यादा टूर्नामेंट की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा राजू बोगा के करियर में। और जो वापसी की है उन्होंने टेनिस क्रिकेट में, भिवंडी क्रिकेट में, मैं समझता हूँ कि एक अच्छी शुरुआत उनके द्वारा अब तक बीपीएल में रही है। जी बिल्कुल हरी सर, जिस तरह से अब तक गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है राजू बोगा द्वारा।
सभी गेंदबाजों ने अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है। अब देखना यहाँ पर आतिश किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि अब तक उन्होंने जो रन बनाए 14 रनों पर खेल रहे, जिसमें एक सिक्सर भी उन्होंने लगाया था पिछली गेंद के ऊपर। उसी बीच वहां पर देखना फोर्स किया इस गेंद को और ये गेंद कहीं दूर जाकर गिरती हुई 6 रनों के लिए। शॉट्स होते हैं इस तरह के और जाकर पतरे को लगने वाला वो 6 पतरा तोड़ छक्का राजू बोगा की एक खराब गेंद थी। हाफ ट्रैकर शॉर्ट पिच गेंदे ये काम नहीं कर पाएगी। टर्न और बाउंस दोनों था लेकिन जल्दी पढ़ लिया बैटर आतिश ने। आतिशी छक्का। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आतिश के बल्ले से आता हुआ। पहली 2 गेंदें बहुत बढ़िया रही थी लेकिन इस बार हमला किया वहां पर आतिश ने। एक बार फिर से देखना बड़े हिट की तरफ गए थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है। अभी पाटिल वहां मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। देखिए खिलाड़ी की कमिटमेंट देखिए, आउट होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। बीपीएल इसीलिए आयोजित किया जाता है कि नया खिलाड़ी, पुराना खिलाड़ी, सीनियर, जूनियर, लेजेंड, अपकमिंग क्रिकेटर, तमाम लोग अपना हुनर दिखाए। 100% से ज़्यादा खेलना होगा बीपीएल का टाइटल जीतने के लिए और एक अच्छी शुरुआत राजू बोगा द्वारा कही जाएगी। एक लेजेंडरी खिलाड़ी है भिवंडी के, बहुत ही कामयाबी उन्होंने कर दिखाई क्रिकेट के इतिहास में। जी बिल्कुल, जिस तरह से अब तक का उनका सफ़र रहा है क्रिकेट का। एक और अच्छी गेंद वहां पर सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई थी। देखना दूर से वहां पर प्रथमेश आते हुए उसी बीच एक बार फिर से एक ही रन आएगा। इस ओवर में हम देख रहे हैं कि भले एक सिक्सर लगा है लेकिन अब तक नफी तुली गेंदबाजी देखने को मिली है। बहुत अच्छी गेंदबाजी। राजू बोगा अब तक 20 रन दे चुके हैं और ये मैदान को देखते हुए 2 ओवर में 15-17 रन आम बात रहेगी क्योंकि फुल टॉस की बॉल जिस तरह से ट्रैवल होती है, फुल टॉस ने तहलका मचा रखा है टेनिस क्रिकेट में और उसमें बीपीएल में भी फुल टॉस की गेंदें आसमान में उड़ती हुई नजर आ रही है। 59 for 4। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे आतिश। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है लगातार राजू बोगा द्वारा। स्कोर हम देखें तो अभी भी जो हुआ है 59। तो यहां पर हिट विकेट के रूप में विकेट गिरता हुआ आखिरी ओवर वहाँ पर लॉ नंबर 35 स्ट्रोक खेलते समय आपके शरीर का कोई हिस्सा या आपका प्लेइंग इक्विपमेंट जाकर स्टंप को लगता है तो अंपायर के पास नियम नंबर 35 के अंतर्गत आउट घोषित करने की सत्ता है और वो वहाँ पर राजू बोगा ने कर दिखाया। तो राजू बोगा अपने 2 ओवर समाप्त करने जा रहे हैं और नए बल्लेबाज है जावेद। अगले मैच के टॉस की जो दोनों टीमें हैं इनको तैयार रहना है, बालाजी ग्लोबस और आगरी राजा पोगाव। तो यहाँ पर आतिश इस वक्त आउट होकर वापस लौटते हुए 21 रनों की बहुत ही बढ़िया पारी खेली उन्होंने और 9 रन बनाए। आतिश जी, तो मैंने देखा आपने उन्हें कुछ एडवाइस दी, क्या कहा आपने उनसे? लास्ट ओवर है, कम से कम 15 रन चाहिए हम लोगों को। कम से कम तो बना लीजिए, ऐसे आपने बोला। ऑल द बेस्ट कहा उन्हें। अच्छा मुझे बताइए, गेंदबाजी बहुत अच्छी हो रही है इसीलिए लोग आउट हो रहे हैं या क्या कारण है? उनकी गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। अच्छा आपका ये विकेट कैसे गया? बैट स्टंप को लगा। बैट स्टंप को लगा। ओके, थैंक यू सो मच, आप बैठ सकते हैं। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। राजू बोगा ने जो 20 रन दिए उसमें एक चीज़ समझी जा सकती है, काफ़ी समय बाद उन्होंने गेंदबाजी में कदम रखा है लेकिन प्रभावशाली डेब्यू है। और अब आखिरी ओवर का जो खेल है मज़हर भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सुनहरा अवसर है क्योंकि जावेद जो मैदान में उतरे हैं वो भी एक बहुत अच्छे स्ट्रोक मेकर हैं। दूसरी तरफ वैभव माड़ी ये भी अच्छा क्रिकेट खेल चुके हैं, खेल रहे हैं। जो आखिरी 6 बॉल में 15 का लक्ष्य है, अगर वो पूरा करते हैं तो लगभग 73 से 75 के बीच का स्कोर हो सकता है, विच शुड बी अ गुड स्कोर। और यहाँ पर जहाँ तक
सोना देवी विहान मीत कुमार का सवाल है, वो चाहेंगे कि ये स्कोर 70 के अंदर किसी भी कीमत पर रखा जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वही देखते हुए यहाँ पर देखना है गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में किशन मात्रे को बुलाया गया है। देखिए समय के मामले में सहयोग करना है, इस बात का ध्यान देना है खेलने वाली सभी टीमें। वक्त की पाबंदी तमाम लोगों के लिए ज़रूरी रहेगी, तमाम टीम और तमाम खिलाड़ियों के लिए। किशन मात्रे लास्ट ओवर लेकर आते हुए सामना करेंगे वैभव माली। पहली गेंद वहां पर किशन की देखना है, लॉन्ग ऑन की दिशा में इस गेंद को खेला है। वहां पर वैभव माली ने 1 रन जरूर आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से ये धीमे से आगे खिसकता हुआ 60 रनों पर। अब लास्ट ओवर का खेल हम यहाँ पर देख रहे हैं। और राजू बोगा स्वयं देखिए कितना दूर चले गए, वहां पर कुछ बताते हुए उनके कंधे पर हाथ रखकर। जब एक गेंदबाज गेंदबाजी करता है तो उसके दिमाग में एक ही विचार चल रहा होता है, लेकिन टीम के जो अन्य खिलाड़ी है वो उसको बताते हैं कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसा करो, ऐसा मत करो। डूज एंड डोंट्स ऑफ क्रिकेट, जो वहाँ पर राजू बोगा ने शायद कुछ बात बताई है। और अब जावेद के लिए तैयार होते हुए वहाँ पर गेंदबाज किशन। जी बिल्कुल, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है अगर हम राजू बोगा की बात करें, लेकिन यहाँ पर अगर हम किशन की बात करें तो वो भी बहुत बढ़िया गेंदबाज है और अच्छा बैटर रहेगा यहाँ पर जावेद के सामने। पहली गेंद वहां पर सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है, देखना है वहां खिलाड़ी मौजूद है और जावेद की पारी भी यहाँ पर समाप्त होती हुई। भूल तो हो गई। लता जी की मधुर आवाज, इटरनल लता। एक ही सूर्य, एक ही चंद्र, एक ही लता, एक ही सचिन, इनकम्पैरेबल। और हमारे डीजे ने क्या गाना बजाया। और जावेद थोड़ा मायूस होकर लौट रहे हैं। जावेद जी हमारे साथ यहाँ जुड़ते हुए। जावेद जी, आप अपनी बाकी टीम मेंबर्स जो बचे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? ज़्यादा कुछ नहीं, बॉलिंग में अच्छी मेहनत करो और टीम को जिताओ। टीम को जिताएं। अच्छा, अपने परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? परफॉर्मेंस क्या, अभी एक हिट ही करना था और हिट के और आउट हो गए। जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप बैठ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया गाना बजाते हुए डीजे सुमित, ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। तो 2 रन है इस गेंद के ऊपर, स्कोर 2 रनों की मदद से 62। आखिरी मैच के खेलने वाली दोनों टीमों के कैप्टन के लिए लास्ट कॉल है। आपको टॉस बॉक्स में उपस्थित होना है। उसी बीच इस बार देखना है गेंद ऊपर चले गई, वहां पर फैजान सिद्दीकी गेंद के नीचे आते हुए एक और विकेट गिरता हुआ। लास्ट ओवर में कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है किशन द्वारा। ओवर में देखने को मिल रही है किशन मात्रे द्वारा। अब तक अगर हम देखें तो 4 गेंदों में 3 रन खर्च किए और 2 बड़े विकेट हासिल किए। अगर हम अब बल्लेबाजी की बात करें, दोनों बल्लेबाज आमिर और उनका साथ देने के लिए अब उजैर, दोनों फ्रेश बल्लेबाज हैं। लेकिन अब यहाँ से जो गेंदें बची, सिर्फ 2 गेंदें बची। स्कोर हम देखें तो अभी भी रुका हुआ है 62, 7 विकेटें गंवाने के बाद राजस्थान रॉयल। इस बार देखना है वहाँ फोर्सिंग स्ट्रोक खेला है कवर की दिशा में, वहाँ पर प्रथम जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच वहां पर 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। अच्छी दौड़ देखने को मिली वहां विकेटों के बीच में 2 रनों की मदद से स्कोर अब 64 पर पहुंचता हुआ। पहले जो 2 मुकाबले रहे थे अरे सर, उसमें हमने देखा कि 80+ स्कोर बना था, लेकिन इस मैच में हम देख रहे हैं कि उतना स्कोर नहीं बन पाया है। उसका कारण ये है कि जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी की है
पावर प्ले के पहले 2 ओवर में रन बहुत ज़्यादा खर्च हुए, लेकिन वो एक वार्निंग था और आखिरी 4 ओवर में बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी। इस बार अच्छी लंबाई की गेंद वहां पर ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेल दिया है। योगी वहां पर मौजूद है, थोड़ा सा फंबल और देखना है दूसरे रन के लिए एक बार फिर से वहां पर पलट चुके हैं। 2 रन आएंगे इस गेंद के ऊपर। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल ने रन बनाए हैं 66। आइए अगले मुकाबले का टॉस होने जा रहा है, जहां पर खेलने वाली टीमें रहेंगी बालाजी ग्लोबल्स और आगरी राजा पोगांव के बीच में अगला मुकाबला, जहां पर टॉस के लिए दोनों कैप्टन बिल्कुल तैयार है। धन्यवाद कमेंट्री बॉक्स। तो आइए दोस्तों, आज के आखिरी मुकाबले के टॉस के लिए मैं यहाँ पर बुलाना चाहूँगा सम्मान्य विराट सोरगे, अमोल पाटिल जी और जीतू मानेरकर जी। आप तीनों से प्रार्थना है हमारे साथ जुड़ जाएं। अमोल पाटिल जो कि BC4 कमेटी के सदस्य हैं, जीतू मानेरकर साहब सम्मान्य दयानंद चोरगे साहब के बहुत घनिष्ठ मित्र, और विराट सोरगे बालाजी ग्लोबस टीम के को ओनर हैं। वीरेंद्र चोरगे और विराट सोरगे। हमारे एक तरफ सूरज जोशी जो कि कैप्टन है बालाजी ग्लोबस टीम के, और यहाँ पर आगरी राजा पोगांव टीम के कैप्टन भी आ चुके हैं। तेजस पाटिल फेम टीम है, और मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। तो मैं अब विराट सोरगे इनसे प्रार्थना करूंगा कि आपको टॉस करना है। हेड का कॉल है, सिक्का दूर गिरा है और सिक्का बालाजी ग्लोबस ने इस टॉस को जीता है। जीत लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। और हमारे जितने गेस्ट्स यहाँ पर आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 खुशी हो रही होगी, टॉस जीत गए हैं आप। आज का आखिरी मैच है आपका, क्या चूज करना चाहेंगे आप? हम लोग बैटिंग करना चाहेंगे। बैटिंग करना चाहेंगे, कोई कारण इसका? बैटिंग पहले क्यों? क्योंकि वो फुल टॉस का बॉल है, स्कोर अच्छे से हो रहा है। सभी अभी 2-3 मैच हुए, मैचेस में स्कोर ज़्यादा हो रहा है, तो हम लोग भी ऐसा कुछ करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर मारने की कोशिश करेंगे और सामने वाली टीम के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर अल्ताफ बाली जी सबको दे रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अल्ताफ बाली जी जो भी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, जो है बाली ट्रॉफी रहे या भिवंडी प्रीमियर लीग रहे, वो सब अच्छे से एकदम इतना अच्छे से करते हैं जैसे कि ऐसा लगता है कि हम लोग यार टूर्नामेंट नहीं, कहीं IPL टूर्नामेंट खेल रहे हैं हम लोग। बहुत 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 बढ़िया सर। देखिए, दोनों टीमों ने एक एक विजय हासिल किया है, और टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर बनाने वाली टीम आगरी राजा पोगांव। आपकी टीम पहले गेंदबाजी करने जा रही है, आपको लग रहा है कि पहले गेंदबाजी करना ये आपके लिए सही साबित होगा? अगर मैं टॉस जीता तो मैं गेंदबाजी करना चाहता था, और अब मुझे गेंदबाजी मिल गई। आगरी राजा पोगांव के जो ओनर है तेजस पाटिल, वो किस तरह से आपकी टीम के खिलाड़ियों को बात करते हैं, किस तरह से आप सबको हैंडल करते हैं? बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब हैंडल। और पहले गेंदबाजी करते हुए कोई स्कोर है जहां तक आपको लग रहा है कि बालाजी को ये स्कोर तक हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे? 60 के अंदर रखने की कोशिश करेंगे। तो 60 तक रोकने का प्रयास रहेगा, ऐसा आगरी राजा पोगांव के कैप्टन का कहना है। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से कमेंट्री बॉक्स की तरफ हम रुक करते हैं। अभी अभी आज के आखिरी मुकाबले का टॉस हुआ है, जिसको बालाजी ग्लोबस ने जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ये मुकाबला लेकर आपके सामने मुखातिब होंगे कुछ देर बाद। तब तक देखते रहिए भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी पंड्या और प्रेरणा गुप्ता। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2 में। आज शुरुआत हुई है, ये पहला दिन टूर्नामेंट का, और बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रहा है। काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि इस मैच में बहुत बड़ा टोटल तो देखने को नहीं मिला है। 66 रन बनाए गए हैं पहले बैटिंग करते हुए राजस्थान रॉयल्स द्वारा, लेकिन फिर भी एक फाइटिंग टोटल ज़रूर रहेगा उनके लिए। एक ऐसा स्कोर जहां पर मैच जीता जा सकता है। 67 रनों का टारगेट रखा गया है सोना देवी विहान मीत कुमार के सामने। सोना देवी विहान मीत कुमार टीम की अगर मैं बात करूं तो अजय, आप इस बात से गौर करेंगे कि पहले 2 ओवर में पावर प्ले के 31 रन गए, लेकिन उसके बाद वाले 4 ओवर में जो गेंदबाजी हुई, कासिम बाबू, राजू बोगा, किशन मात्रे,
जबरदस्त टर्न अराउंड, मतलब लोगों को लगता था 80, 85, 90, 100 तक स्कोर जाएगा, उसको दबा दिया। तो सोना देवी विहान मीत कुमार के कासिम बाबू ने जो पहले 2 विकेट लिए, उन्होंने कुणाल म्हात्रे और उसके पहले कामरान खान का जो विकेट लिया, शुरुआत करके दी, और फिर राजू बोगा और किशन ने उसमें रंग भरे। मेरे ख्याल से सोना देवी विहान मीत कुमार इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहती होगी कि उनके गेंदबाजों ने पहले 2 ओवर में जो खोया वो आखिरी 4 ओवर में पाया। जी बिल्कुल सही कहा आपने, यानी कि जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं अपनी टीम को उन्होंने दिलाया है पहली पारी जब समाप्त हुई है। और अब इस मैच का सेकंड हाफ यहाँ पर शुरू होने जा रहा है, यानी कि सोना देवी विहान मीत कुमार टीम का रन चेज 67 का टारगेट है। सलामी बल्लेबाज प्रथमेश ठाकरे और उनके साथ कुमार गुंड। खेल शुरू होने से पहले हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे 70-70 स्पोर्ट्स, तारिफ सैयद साहब, फुल टॉस की गेंदे अली असगर साहब, A1 चिकन सेंटर जो भोजन के लिए दोपहर को चिकन है उसका अरेंजमेंट्स, एक्रेलिक आर्ट के अतीक पल्लन जिन्होंने ट्रॉफी स्पॉन्सर की है, O2 लाइव शाहिद पापा और उनके भाई, तथा धनेश स्पोर्ट्स, इनका भी विशेष आभार। पहली गेंद आसमान में भेज दिया और मैदान के बाहर भी 6 रन गजब की शुरुआत करते हुए प्रथमेश ठाकरे, और भव्य स्वागत होता हुआ इस BPL के दूसरे संस्करण में गेंदबाज हुजैर मोमिन का। बहुत ज़बरदस्त हिट लगाया प्रथमेश ठाकरे ने, फुल फॉर्म में है। हम बहुत बहुत आभारी है शुमाइल सूसे के भी, जो हमारे चाय की जो व्यवस्था है उसके लिए उन्होंने जो कॉपरेशन दिया है। थैंक यू सो मच शुमाइल सूसे। पहली बॉल पर 6, गोल्डन 6 कहा जाएगा इसको, स्वर्णिम षटकार। ड्रीम स्टार्ट आप कह सकते हो बल्लेबाज के लिए कि पहली गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ा है। हुजैर मोमिन गेंद को स्विंग कराने के लिए जाने जाते हैं, और ये फुल टॉस है, फिर से तान दिया है आसमान में, डिप स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर तो है लेकिन कोई अवसर नहीं। एक और छक्का, गेंद सीधे जाकर टकराई है द लाइन्स ऑफ देवा के बैनर पर। वाकई में 2 गेंदों में 12 रन, इससे बढ़िया स्टार्ट आपको क्या मिलेगा कि हुजैर मोमिन जैसे बहुत ही लाजवाब गेंदबाज के सामने 2 बेहतरीन स्ट्रोक खेले हैं वहाँ पर प्रथमेश ठाकरे ने, और उनके साथ में ओपनर जो आए हैं कुमार गुंड। अब ये भी बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, मेरे ख्याल से एक ज्वलनशील रसायन इस वक्त मैदान में उतरा है सोना देवी विहान मीत कुमार के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, डेडली कॉम्बिनेशन ये नजर आ रहा है टॉप ऑफ द ऑर्डर। हाफ वाली है, एक और शानदार स्ट्रोक, इस बार मिड ऑफ के ऊपर से और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, लगातार तीसरा छक्का। ओह व्हाट अ शॉट, 3 बैक टू बैक 6। मिजाज में बगावत आंखों में सैलाब रखते हैं, मिजाज में बगावत आंखों में सैलाब रखते हैं। प्रथमेश और कुमार गुंड अपने बल्ले में तेजाब रखते हैं। आग उगलता हुआ ये बल्ला प्रथमेश ठाकरे का, और गेंदबाजी भी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है। पहली गेंद मेरे ख्याल से उतनी बुरी नहीं थी, उस पर स्ट्रोक बनाया गया था, स्लॉग स्वीप किया था उन्होंने बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में। उसके बाद ये देखिए ये किस तरह से इम्प्रोवाइज तरीके से थोड़ा सा वो स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन उसके बाद 2 बड़ी कमज़ोर गेंदें हुजैर मोमिन द्वारा, ये तो फुल टॉस थी और उसके बाद एक जूसी हाफ वाली। लेकिन गेंद के मेरिट पर खेलना भी जानते हैं प्रथमेश ठाकरे। हाल ही में जो भिवंडी ग्रामीण प्रीमियर लीग हुआ था उसमें 4 मैचेस में लगातार मैन ऑफ द मैच रहे थे प्रथमेश ठाकरे, काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। शुरुआत में ही दबाव डाल दिया है उन्होंने हुजैर मोमिन पर। बेहतरीन गेंद, इस बार ये करारा जवाब देते हुए हुजैर मोमिन, लेग बिफोर विकेट। बहुत ही बेहतरीन टप्पा, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी। हुजैर मोमिन ने आखिरकार जो गेंदबाजी के लिए वो जाने जाते हैं वो ड्रीम बॉल की, और वहाँ पर प्रथमेश ठाकरे की एक धुआंधार पारी 4 गेंदों में 18 रनों की समाप्त हुई। एक और जहाँ 3 बॉल में 3 6 लगे अजय, वहीं पर हुजैर मोमिन ने अपना जो दर्जा है वो दिखाया। एक जो औहदा है हुजैर मोमिन का आज भिवंडी के टेनिस क्रिकेट में, उस पर खरा उतरता हुआ हुजैर मोमिन। हालांकि इस सीज़न में हम देखें तो पहले कुछ टूर्नामेंट्स में हुजैर मोमिन खेले नहीं, काफ़ी लेट उन्होंने स्टार्ट किया है खेलना इस सीज़न में, और कहीं ना कहीं काफ़ी देर दूर रहे हैं क्रिकेट से। उस लिहाज से भी देखा जाए तो थोड़ा सा वक्त लगता है हरीश जी कमबैक करने के लिए। नहीं देखिए, आप जो यहाँ पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं युवराज सिंह का रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए गए थे, स्टेडियम में गए थे कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जैसा बॉल रहा था वैसा खेल रहा था। लेकिन आपने तीनों फर्स्ट बॉल्स पे मार दिए छक्के पे छक्के पे छक्के, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है।
अगर आगे और आपने सोचा था एक और 6 लूं और उसके चक्कर में हो गया, आउट हो गए। चलिए थैंक यू सो मच, आप बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी दाव खेली इन्होंने, अनलकी इसीलिए आउट हो गए। ओवर टू द कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू प्रेरणा। नए बैट्समैन आए हैं राहुल मात्रे, मैन फ्रॉम हाईवे दिवे। एक और बेहतरीन गेंद, ये उज्जैर की स्टॉक बॉल है जो टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। बहुत लाजवाब गेंदबाजी। पहली 3 गेंदें भले ही पक्ष में न रही हो, लेकिन बची हुई गेंदें मेरे नियंत्रण में है और पिछली 2 गेंदों पर बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी हुजैर मोमिन द्वारा। धीरे धीरे रिदम में आते हुए उज्जैर, और इस बार प्लान मिस, डॉट और सीधी स्टंप्स पर क्लीन बोल्ड। क्या क्रिकेट हो रहा है यार। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 का क्या यह सबसे बेहतरीन मुकाबला होगा? मुझे ऐसा लग रहा है। अजय, जिस हिसाब से उजैर मोमिन स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी, बैट्समैन के पास कोई मौका नहीं था। राहुल मात्रे अभी अभी आए और आंखें मूंद कर खेलने का प्रयास, और यहाँ पर 1 ओवर 18 रन 2 विकेट, और दूर कहीं वो जो चिमनी है ना, चिमनी से निकलते हुए धुएं की कसम, बीपीएल देखने में खेलने में मजा आ रहा है। क्या बात है हरीश जी। लेकिन ये स्ट्रोक बड़ा ही कमज़ोर स्ट्रोक रहा राहुल मात्रे का। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, और क्या शानदार गेंद थी। टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई। इससे पहले जो गेंद उन्होंने की थी वो टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली थी, हवा में वो अंदर की तरफ आई थी। ये हवा में भी अंदर आई और टप्पा पड़ने के बाद भी अंदर आई। शानदार इन कटर थी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, वहाँ पर राहुल मात्रे ने पूरी तरह से चूक गए और सीधे गेंद मिडिल स्टंप पर जाकर टकराई है। तो इस तरह से ये घटनापूर्ण ओवर समाप्त हुआ। पहली 3 गेंदों पर 3 छक्के आए, लेकिन उसके बाद ज़बरदस्त वापसी की उजैर मोमिन ने। सोना देवी बिहान मित कुमार टीम का स्कोर पहले ओवर के बाद 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि बैट्समैन आउट होने के बाद सर्कल के एज पर रुकने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनिश्चित करें कि आउट हुआ बैट्समैन नेचुरल अपनी चाल चलते हुए बाहर आए और अंदर जाने वाला बैट्समैन नेचुरल क्रॉस ओवर होते हुए अंदर जाए। वहाँ सर्कल के एज पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले ने ये सूचना दी है। शुरुआत धमाकेदार की प्रथमेश ठाकरे ने, लेकिन ऐसा लगा कि वो थोड़े कैरिड अवे हो गए। जिस तरह से 3 छक्के आए थे, एक अच्छी गेंद उनको मिली, उस पर भी कहीं ना कहीं वो एक आक्रामक शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए। उजैर को जो साथी खिलाड़ियों ने उनके साथ जो मीटिंग की, उनकी हौसला अफजाई की, ये बहुत ज़रूरी होता है। हौसला अफजाई, हौसला बढ़ाना। उजैर को डेफिनेटली कहा होगा कि उजैर तू चेंडू व्यवस्थित टाकरे तरस आउट होईल प्रथमेश ठाकरे। क्या बात है। और प्रथमेश ठाकरे का काम तमाम कर ही दिया वहाँ पर उज्जैर ने। पिछले सीज़न में भी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले थे, मेरे ख्याल से मेयर कप में ही वो एक मुकाबला खेले थे, और इस सीज़न में भी अभी तक ज़्यादा क्रिकेट उज्जैर ने नहीं खेला है। नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए अली अंसारी। अच्छा रहा था पहला सीज़न अली के लिए बीपीएल का। क्रीज पर नए बैटर पहुँचे हैं अभी पाटिल। कुमार गुंड के पास स्ट्राइक, सलामी बल्लेबाज है, और ज़्यादातर कुमार सलामी बल्लेबाज के तौर पर ही खेले हैं जिस भी टीम के लिए खेले हैं, चाहे ग्रामीण क्रिकेट में वो बिनार टीम के लिए खेले या फिर सिटी क्रिकेट में धनेश 11 के लिए, और अब बीपीएल में सोना देवी बिहान मित कुमार टीम के लिए खेलते हुए इस दूसरे संस्करण में। बैट का फेस खोला है, गली में खेलते हुए सिंगल। संयम भी बहुत ज़रूरी है हरीश जी। टारगेट जो है इतना भी बड़ा नहीं है कि आपको हर गेंद पर बड़ा प्रहार करने की ज़रूरत हो। संयम के लिए मन पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अहमदनगर हाईवे पर जाते हैं तो वहाँ पर एक बैनर बोर्ड लिखा हुआ है, मनावर ब्रेक म्हणजे उत्तम ब्रेक। बिल्कुल आपके मन पर अगर आपका नियंत्रण है तो संयम आएगा, और संयम आएगा तो सक्सेस आएगा। जी हाँ, दूसरों पर काबू पाना कहा जाता है कि ताकत है, लेकिन खुद पर काबू पाना असली ताकत है। इन्होंने भी बैट का फेस खोला है, गैप में निकाल दिया है। बहुत ही शानदार स्ट्रोक, चतुराई भरा स्ट्रोक है। पैर से रोकने का प्रयास, नहीं रुकी गेंद, गेंद सीमा पार। 4 रन। क्या नज़ाकत और नफासत ये दोनों एक साथ देखने को मिले। ये मैच जिस तरह से चल रहा है ना, मैं पूरी तरह से मुतमैन हूँ कि ये मैच शायद टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मैच हो सकता है। जी हाँ, अंदेशा तो यही है कि ये एक बहुत ही रोमांचक मैच रहेगा। डेफ टच, अंतिम क्षणों में बैट का फेस खुला है। डाइव लगाकर रोकना चाहते थे वहाँ पर बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट कामरान, लेकिन उनसे भी रुकी नहीं, और आउटफील्ड बहुत अच्छी है यहाँ पर परशुराम टावर स्टेडियम में।
चौके से अपना खाता खोला है अभी पाटिल ने। और इस बार फंस गया है स्ट्रोक, लीडिंग एज। इस बार कामरान ने कोई गलती नहीं की, आसान सा कैच था और विकेट का पतन। ये भी न जाने ली बहुत एक्सप्रेस बॉलर नहीं है और थोड़ा भी शॉट रखेंगे तो मार पड़ सकती है। इस बार शॉट हम पुल किया है, खिलाड़ी मौजूद है बाउंड्री पर। पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले का ये दूसरा ओवर। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है इस समय। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ सोना देवी बिहान मित कुमार टीम का 29 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 67 रनों का पीछा किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो रिक्वायर्ड रेट बिल्कुल उनके कंट्रोल में नजर आ रहा है। नहीं, और यही एक फ़र्क होता है अजय, अग्रेशन एंड कंट्रोल्ड अग्रेशन। मतलब एक होता है आक्रामकता और एक थोड़ा सा संयम वाली आक्रामकता जो अब नज़र आ रही है यहाँ पर। कुमार गुण 3 बॉल 6। वीरेश पाटिल अभी अभी आए हैं और वीरेश की यह जिम्मेदारी रहेगी कि वो कुमार का साथ निभाए। ये सेंसिबल बल्लेबाजी है। छोटी बैकलिप का इस्तेमाल करते हुए टर्न किया है वाइड ऑफ डीप मिड विकेट और तेज दौड़ लगानी होगी यहाँ पर। ये खतरनाक साबित हो सकता था लेकिन नॉट आउट करार दिया गया है अंपायर द्वारा। विकेटों के बीच में क्या दौड़ लगाई थी दोनों ने, और अंपायर शानू कुरैशी के पास अपील ज़रूर की गई थी लेकिन वो सुनिश्चित थे कि बल्लेबाज अपने क्रीज में पहुंच चुका है। तो 2 ओवर 31 रन। देखिए क्या योगा युग की बात, इवन पहली इनिंग में भी पावर प्ले के 2 ओवर के बाद स्कोर 31 ही था और दूसरी पारी में भी 2 ओवर के बाद स्कोर 31 ही है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के ज़्यादा विकेट नहीं गिरे थे, 1 ही विकेट गिरा था, लेकिन उसके बाद जो गेंदबाजी देखने को मिली राजू बोगा और कासिम बाबू द्वारा, साथ में किशन म्हात्रे का ओवर भी बहुत अच्छा रहा था। तीनों भी गेंदबाजों ने कसावट भरी गेंदबाजी की थी। उसी तरह की गेंदबाजी की आवश्यकता है इस समय राजस्थान रॉयल्स टीम को। बचे हुए 4 ओवर्स में मात्र 36 रन बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए सोना देवी बिहान मीत कुमार टीम को। दोनों टीमों का ये पहला मुकाबला है। आज ग्रुप ए के मैचेस खेले जा रहे हैं और पहला मैच कुछ खास होता है। इम्पोर्टेंस कहीं ना कहीं इस मैच का ज़्यादा रहेगा दोनों टीमों के लिए। नहीं, डेफिनेटली जब आप कोई भी टूर्नामेंट हो, आपका एग्जामिनेशन हो, आपका जॉब इंटरव्यू हो, कोई भी काम जब आप पहली बार करने जा रहे हैं या मान लीजिए पहली बार आप भिवंडी से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आपको तमाम एहतियात बरतने पड़ते हैं। और अब तक जो परिस्थिति है, दोनों टीमों ने अच्छा क्रिकेट खेला है
लेकिन यहाँ पर कामरान खान, जिस तरह से कासिम बाबू को हमने देखा उसी तरह हम कामरान खान को भी देख रहे हैं। ये वो मैच भी है अजय जिसमें लेफ्ट आर्म गेंदबाजों की अग्नि परीक्षा, लेफ्ट आर्म गेंदबाज का बोलबाला रहा है। तो अब देखना होगा कामरान खान, पिछले कुछ सालों में उन्होंने रनअप को कम किया है, लेकिन जब हमने उनको देखा था मित्तल ग्राउंड मुंब्रा में, जब वो खेलने के लिए आए थे, एक लंबा रनअप हुआ करता था, लेकिन विद द टाइम उन्होंने अपने रनअप को शॉर्ट किया है और गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर अगले ओवर में। 2 ओवर 31 रन 3 विकेट। समय के साथ ये चीज़ें होती रहती है, बदलाव क्रिकेट के खेल में कई टीमों में देखते हैं हम, और कई खिलाड़ियों के खेल में भी बदलाव देखने को मिलता है। भले ही बॉलिंग रनअप उन्होंने कम किया है, लेकिन आज भी उतने ही इफ़ेक्टिव वो साबित हो सकते हैं, और इसीलिए तो बतौर आइकॉन प्लेयर उनको खिलाया गया है राजस्थान रॉयल्स टीम में। बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उनके कंधों पर। लगातार विकेट्स यदि गेंदबाज निकालते रहेंगे, चूँकि 3 विकेट्स तो मिल भी गए हैं ऑलरेडी, और ज़्यादा विकेट्स मिलेंगे यहाँ पर तो मौका बन सकता है राजस्थान रॉयल्स का। ओह, ये गेंद बिल्कुल बैठ गई थी, सबमरीन डिलीवरी, सरपटी चेंडू जिसको हम मराठी में कहते हैं। शायद कोई एक आधे स्पॉट पर गिरने के बाद वो नीचे रही है, लेकिन बिंदी गेंद है, ये भी उतनी ही कड़वा सच। जी हाँ, डॉट गेंदों से भी दबाव बन सकता है। इस बार उछाल अच्छा था, कट किया है, डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है वहाँ पर। कुमार बहुत ही सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अभी पाटिल की तरह गलती नहीं करना चाहते हैं, जिन्होंने एक बहुत अच्छा चौका जड़ा था, लेकिन उसके बाद एक खराब शॉट खेला, अक्रॉस द लाइन खेलने के चक्कर में आउट हुए। मैच को फिनिश करना ये हर एक टीम के आइकॉन खिलाड़ी, चॉइस प्लेयर या ऑल इंडिया आइकॉन कहिए, सीनियर खिलाड़ी कहिए, जिम्मेदारी लेनी होगी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज हैंड इन हैंड, ऐसा कहा गया है। तो जब आपको हमने ताकत दी है, अधिकार दिया है, साथ में आपकी जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये भी साथ में जाती है। कुमार गुण ने एक सेंसिबल पारी खेली है, और अगर वो नॉट आउट रहते तो मैं समझता हूं कि सोना देवी विहान मीत कुमार के लिए द जॉब इज डन। देखना है वीरेश किस तरह से उनका साथ निभाते हैं। पहली गेंद पर तो उन्होंने बहुत अच्छा स्ट्रोक खेला था पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर, जिसमें 2 रन उनको मिले थे। ये एंगल बहुत मुश्किल हो सकता है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। क्या ज़बरदस्त कोण बनाया था उस गेंद ने। कासिम बाबू ने भी जो कोण बनाए थे बिल्कुल इसी तरह के दिलकश, और यहाँ पर कामरान खान का भी वो बेहतरीन कोण था जो समझ नहीं पाए। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट कामरान, इस बार थोड़ा दूर रखा था और बाहर की तरफ निकली थी, वाइट का इशारा। फिर से हालांकि बीट किया था बैट्समैन को, लेकिन अतिरिक्त रन खर्च किया गया है। स्कोर अब 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 33 for 3, और 34 रनों की आवश्यकता है। गेंदों में मूवमेंट नजर आ रहा है इस बार। यॉर्कर लेन थी, इनसाइड एज, गेंद पीछे सरक रही है। 2 खिलाड़ी पीछा तो कर रहे हैं, लेकिन गेंद इस रेस में जीत गई। लकी चौका। अभी बाकी है, लेकिन स्कोर बनाना बाकी नहीं है, वो बराबर बनाया जा रहा है। वीरेश पाटिल रूबी कट जिसको कहा जाता है, अंदरूनी सिरा लिया, और ये चौका महंगा पड़ सकता है यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स ये टीम के लिए। इस वक्त सोना देवी विहान मीत कुमार 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए, ज़्यादा टाइम लेना नहीं, आपको मैच स्टार्ट करना है, हमारे पास समय कम है। इसके बाद एक और पूरा मैच हमें खिलाना है। लेकिन यहाँ पर तारीफ करूंगा वीरेश की, भले ही वो आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था, लेकिन कुमार गुण को उन्होंने एक सिग्नल दिया कि मैं हूँ, आप मेरे साथ चल सकते हैं, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और यहाँ से हम देखें तो ये मुकाबला थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बैटिंग करने वाली टीम के पक्ष में झुका हुआ है। यदि बल्लेबाज ज़्यादा गलतियाँ ना करे तो आसानी से ये टारगेट चेज हो सकता है, लेकिन गेंदबाज प्रयासरत है विकेट्स निकालने के लिए। कामरान का ये पहला ओवर है, अभी तक 6 रन खर्च किए हैं, रन संख्या 37, यहाँ से और 30 रनों की ज़रूरत है, 20 गेंदें शेष। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लेग स्टंप की दिशा में रखा था, फिर से पीछे गेंद चली गई है, और क्या ये बल्ले से टकराई थी? जी हाँ,
हालांकि इस बार मौका था बैट्समैन के पास, एक अच्छा स्ट्रोक खेल सकते थे, ये थोड़ी ढीली गेंद थी। और देखिए यही क्रिकेट है हरीश जी, पिछली गेंद जो कि सटीक यॉर्कर थी उस पर चौका प्राप्त किया बैट्समैन ने, किस्मत का हालांकि सहारा मिला, लेकिन इस बार कमज़ोर गेंद का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। कभी ऐसे ही होता है, जो आसान विषय होता है उसमें हम अच्छे गुण नहीं ला पाते, और जो विषय हमें लगता है डिफ़िकल्ट है उसमें हम पास हो जाते हैं। अब स्ट्राइक फिर से कुमार के पास, ओ टेंटेटिव लगे इस बार, बहुत अच्छी गेंद थी ये, बहुत दूर से बल्ला चला बैठे थे वहां पर कुमार, किस्मत अच्छी है कि किनारा लगा नहीं। डॉट गेंद और इसके साथ ही 3 ओवर्स का समाप्त होता हुआ सोना देवी विहान मित कुमार टेमघर टीम की पारी में। स्कोर है 38 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, बचे हुए 3 ओवर्स में 29 रनों की ज़रूरत। 18 गेंदे 29 रन, और बहुत अच्छा एंगल बनाया था। जैसे कासिम बाबू ने पहली पारी में हमने राजू बोगा को देखा, और अब हमने देखा कामरान खान को, तो लेफ्ट आर्म गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं अजय, जब लेफ्टी खिलाड़ी इतना अच्छा खेलते हैं तो पूरी दुनिया में बताते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। जी हाँ, सही मायनों में लगने लगता है कि लेफ्ट इज राइट। एक जिम्मेदाराना भरी पारी खेलने का प्रयास कर रहे कुमार गुंड, 7 रन बनाए हैं, एक चौका उनके बल्ले से निकला है, 6 गेंदों का हालांकि सामना किया है। वीरेश के बल्ले से भी 7 रन अभी तक निकले हैं, 4 गेंदों का सामना किया है, उनके बैट से भी 1 चौका निकला है। प्रथमेश ठाकरे ने बहुत धुआंधार शुरुआत दिलाई, पारी की पहली 3 गेंदों पर 3 लगातार छक्के जड़े उन्होंने उज़ेर के खिलाफ। हालांकि चौथी गेंद पर उज़ेर ने पलटवार किया, लेग बिफोर के रूप में उनको आउट किया, उसके बाद एक और विकेट उज़ेर को मिला। लेकिन रनों के लिहाज से काफ़ी खर्चीला ओवर रहा था। 3 गेंदबाजों का अभी तक इस्तेमाल किया गया है इस पारी में। पहला ओवर उज़ेर मोमिन ने किया था, उसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए थे अली अंसारी, और अली के ओवर में भी 13 रन बने थे। लेकिन कामरान का ओवर काफ़ी अच्छा रहा, किफ़ायती ओवर, सिर्फ 7 रन खर्च किए उन्होंने। यहाँ से बचे हुए 3 ओवर्स में 29 रनों की आवश्यकता है, रिक्वायर्ड रेट 10 के नीचे है, और जैसा कि हम पहले 2 मुकाबलों में देख चुके हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे रन्स बने हैं। फुल टॉस गेंदों का इस्तेमाल हो रहा है, फुल टॉस गेंद काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। कई ऐसे छक्के देखे हमने पहले 2 मैचेस में जो स्टेडियम के बाहर चले गए हैं। फुल टॉस बॉल को बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग मशीन जो तेज़ रफ्तार से बॉल को प्रोड्यूस करती है, फुल टॉस चैंपियनशिप, फुल टॉस 24 कैरेट, बिल्कुल ये 24 कैरेट वाला यहाँ पर क्रिकेट आप देख रहे हैं दोनों टीमों द्वारा। अभी भी तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी, और वेरी इवनली पॉइज्ड मैच जिसको कहा जा सकता है। अगले 2 ओवर बहुत निर्णायक रहेंगे। हुजैर के छोर को बदला गया, कैप्टन ने अपने आप को सेठ हाजी समद स्टैंड से गेंदबाजी के लिए लाया है। 18 रन खर्च किए थे अपने एकमात्र ओवर में, 2 विकेटें ली थी। अब बैट्समैन है वीरेश। हेलो 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 हेलो। ये फुल टॉस गेंद थी और इसके ऊपर लगने वाला गगनचुंबी छक्का हुजैर अभी भी नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सोना देवी विहान मीत कुमार टीम के लिए काम हो रहा है। वीरेश पाटिल 5 गेंदों में 13 बनाकर खेलते हुए। $44 फॉर द लॉस ऑफ 3। अब 23 रन चाहिए मैच जीतने के लिए बची हुई 17 गेंदों में, और जो बहुत आसान काम रहेगा। सोना देवी विहान मीत कुमार टीम की ओर से जो प्रथमेश ठाकरे ने शुरुआत करके दी, वो जो 3 6 थे वो काम में आते हुए 44 फॉर 3। इस बार ड्राइव किया है ऑन साइड पर, कम से कम 1 रन हासिल करेंगे। दूसरे को तब्दील करना चाहते थे,
45 पर 3। ये भागीदारी 11 गेंदों में 22 रनों की बनी है कुमार गुंड और वीरेश पाटिल की। वेट एंड वॉच वाला क्रिकेट, स्थायी होकर खेलने वाला ये क्रिकेट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है सोना देवी विहान मीत कुमार टीम द्वारा। दिनेश चौधरी और रोहित चौधरी इनकी ये टीम है, जबकि राजस्थान रॉयल्स महबूब घोड़ी की टीम है। 18 टीमों के 18 ओनर्स को भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने बीपीएल में हिस्सा लिया। इस बार थोड़ी धीमी गेंद थी, रन बनाने का लालच परोसा था कुमार गुंड, स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाए। अपने बल्ले के जो हैंडल के ऊपर की ग्रिप है उसको थोड़ा सा ठीक करते हुए स्कोर 45 3 विकेटों के नुकसान पर 45 for 3 फोर्थ ओवर। कुमार गुंड 7 पर, वीरेश पाटिल 14 पर। और 45 पर 3। इस बार भी लोअर फुल टॉस थी, डीप थर्ड मैन पर जाती हुई गेंद 1 रन पूरा किया, स्कोर 46 पर 3। बनाकर लेकिन उसके बाद ये दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। कुमार गुंड जहां शांत नजर आए वहीं पर वीरेश पाटिल कुमार गुंड के बाद बैटिंग को आए, लेकिन अब उनसे आगे निकल गए हैं। कुमार गुंड संयम भरी पारी इसलिए खेल रहे हैं कि वक्त की वो मांग है। अंग्रेजी में क्रिकेट में एक मुहावरा है अजय, प्ले फॉर साइड एंड नॉट फॉर सेल्फ। मुझे खुद के लिए नहीं, अपनी टीम के लिए खेलना है। हेलो 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 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पुणे से इस बार एक और रूबी कट, अंदरूनी सीधा जा रही है, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन के लिए। और योगायोग की बात यह है अजय कि वीरेश पाटिल के बल्ले से ही वो दूसरी बार रूबी कट लगा है और दोनों बार चौका मिला है। सही मायनों में किस्मत के धनी नजर आ रहे हैं। आज लगता है कि उनका दिन है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह से इनसाइड एजेस जब लगते हैं तो गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराती है, लेकिन यहाँ पर चौके मिल रहे हैं वीरेश को, और इस चौके के साथ 50 रन भी पूरे हो चुके हैं सोना देवी विहान मीत कुमार के। 50 रन 3 विकेट के नुकसान पर। वीरेश पाटिल 18 पर, कुमार गुंड 8 पर। इस बार ताकत का प्रहार किया है, हालांकि ऊंचाई मिली और अब अंतर भी नाप लिया है, और ये बेहतरीन चौका यहाँ पर निकलता हुआ बैट्समैन काफ़ी खुश नजर आते हुए ये चौके की बदौलत। अजय, आपको नहीं लगता ये चौके ने थोड़ा प्रेशर अब रिलीज कर दिया है? जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि पिछली गेंद पर जो चौका आया था वहाँ पर ही प्रेशर रिलीज़ हुआ था, उस वजह से ये खुलकर स्ट्रोक खेला गया है। हालांकि पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए थे, हवा में काफ़ी देर भी रही थी, लेकिन खाली क्षेत्र में खेला था। डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई खिलाड़ी नहीं था, लॉन्ग ऑफ से फील्डर भाग रहे थे, उनके पहुंच से बाहर थी गेंद, और एक और चौका यहाँ पर प्राप्त कर लिया वीरेश ने। अच्छी बैटिंग करते हुए देखते ही देखते 22 पर पहुंच चुके हैं, और अब जीतने के लिए केवल 13 रनों की ज़रूरत है बचे हुए 2 ओवर्स में। 12 गेंदों में 13 रन एक बहुत आसान समीकरण नजर आ रहा है। केवल और केवल विकेट गिरा कर ही इस मैच को जीता जा सकता है। ये पार्टनरशिप यहाँ पर सरदर्द बनी हुई है इस वक्त राजस्थान रॉयल्स के लिए। फिर से एक टीम मीटिंग ली जा रही है, और अंपायर शानू कुरैशी ने वहाँ पर उनको आदेश दिया है तखलिया। और पार्टनरशिप देखिए 31 रनों की हो चुकी है। तीसरा विकेट 23 पर गिरा था, 18 पर पहला, और उसके बाद 23 पर 3 विकेट। स्थिति थोड़ी सी ऐसे लग रहा था कि नाजुक हो रही है, और विकेट वहाँ पर चटकाने की आवश्यकता थी, लेकिन पिछले 2 ओवर्स में विकेट्स नहीं मिले हैं। हालांकि कामरान खान का ओवर किफ़ायती रहा था, लेकिन उज़ैर मोमिन काफ़ी महंगे साबित हुए हैं अपने स्पेल में। 2 ओवर में 34 रन देकर 2 विकेट्स। तो यहाँ पर अब कामरान खान का ये ओवर काफ़ी कुछ कह जाएगा। 12-13 ये समीकरण है। कामरान खान वीआईपी एंड से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और बैटर हैं कुमार गुंड। बहुत ज़्यादा बाहर पिच कराया था, वाइड बॉल। इस तरह के वाइड एंगल महंगे पड़ेंगे।
55 रन 3 विकेट। इस बार बिल्कुल पैरों के सामने आती हुई गेंद और बड़े आराम से ड्राइव किया था कुमार गुंड ने, दूसरे को लूट लिया। बहुत अच्छा रनिंग बिटवीन द विकेट का मुजाहिरा पेश करते हुए कुमार गुंड और वीरेश पाटिल। कामरान खान के पास भी बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं बचे हैं प्रायोगिक बदलाव के लिए। 57 3 विकेटों के नुकसान पर। फील्डर्स को भी यहाँ पर काफी सतर्क रहना होगा। और इस बार लपेट लिया है, व्हाट अ पुल शॉट, कुमार गुंड के बल्ले से निकलता हुआ शानदार 6। ये उसका भरपूर फायदा उठाया है कुमार गुंड ने। जैसे गेंद ने टप्पा खाया, ये देखिए बहुत जल्दी परख लिया था और क्रीज में थोड़ा पीछे खेल रहे थे पहले ही, बहुत ही शानदार तरीके से पुल किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में, शानदार सिक्सर। 63 3 विकेटों के नुकसान पर। बंद बोतल के अंदर रखा हुआ सोडा जब बूझ खुलने पर ऊपर उछलता है, उस तरह कुमार गुंड का वो अचानक फिजिंग सिक्सर जिसको कहा जाता है, उस तरह का स्ट्रोक था। 63 पर 3। सबमरीन बॉल नीचे रही। अभी भी इस ओवर में 2 गेंदें हैं और क्या दोनों भी डॉट गेंदें कर सकते हैं यहाँ पर कामरान खान? क्या अंतिम ओवर के लिए वो 4 रन छोड़ सकते हैं? इस बार ड्राइव किया, 1 रन लिया, दूसरे की दौड़ और वहां पर देखिए जो बिंदी गेंद थी उसके नुकसान को भर दिया। 2 रन दौड़कर बड़े आराम के साथ अब स्कोर है 65 3 खिलाड़ियों के नुकसान पर। पगबाधा की अपील को दरकिनार किया अंपायर शानू कुरैशी ने। ओवर समाप्त हुए, 5 रन बने 65, यानी कि 6 बॉल में अब 2 रन चाहिए और 6 बॉल में 2 रन ये वाकई में आसान काम कहा जाएगा। पूरा श्रेय जाता है कासिम बाबू जिन्होंने 2 विकेटें ली और उसके बाद राजू बोगा ने किए हुए ओवर और फिर किशन मात्रे उन्होंने जो गेंदबाजी की। किशन आया, खुशियां लाया और प्रथमेश ठाकरे ने जो पहले 3 बॉल पर 3 6 लगाए, समा बांध दिया। 6 चेंडू 2 धावा, 6 बॉल 2। वीरेश पाटिल 8 बॉल 22, कुमार गुंड 14 बॉल 18। बड़ा ही मुश्किल काम है गेंदबाज के लिए। देखना है कि कौन से गेंदबाज आते हैं आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने के लिए। 6 गेंदों में 2 रन बचाना मतलब सांप के मुंह से मेंढक को बचाने वाली बात है। और खास करके जब मंथ एंड चल रहा हो तो 1000 रुपए में आखिरी 6 दिन निकालने वाली बात है। क्या करें, लेकिन कई बार आपको एडजस्ट करना पड़ता है। एक चीज़ अच्छी है कि अजय ऐसे टाइम पे पर्सनल लोन क्रेडिट कार्ड काम में आते हैं, पर यहाँ तो वो बनाने ही पड़ते हैं, या तो रोकने पड़ेंगे। यहाँ पर और कोई मदद नहीं मिलेगी। 6 बॉल 2। और अब अंतिम ओवर में गेंदबाजी की बागडोर संभालते हुए गेंदबाज शोएब, एक युवा खिलाड़ी पर अब दारोमदार है राजस्थान रॉयल्स टीम की ओर से। बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश तो उनको करनी पड़ेगी। कुमार गुंड 18 पर बैटिंग करते हुए, वीरेश पाटिल 22 पर खेल रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त साझेदारी ये चौथे विकेट के लिए देखने को मिल रही है। बोलो रे वैभव। 6 बॉल 2। भव्य विजय की तरफ आगे बढ़ते हुए, अगर कोई विकेट नहीं गिरता है तो 7 विकेट से ये भव्य विजय और 2 पॉइंट। अच्छी शुरुआत वहां पर करते हुए वैभव। 5 बॉल 2। अभी भी जो मैदान के ऊपर 11 खिलाड़ी है वो सोच रहे हैं कि वैभव 2 और बिंदी गेंद कर दे। 5 बॉल 2 को 3 बॉल 2 पर ला वैभव, यू कैन डू इट। ये मैसेज जरूर टीम दे रही है। और वीरेश पाटिल 9 बॉल 22। एक और डॉट बॉल। अब 4 गेंदे और 2 रन। कहीं अनहोनी को होनी में तब्दील तो करने नहीं जा रहे हैं गेंदबाज वैभव। कैप्टन हालांकि पहले शोएब की तरफ भी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने वैभव को गेंद थमा दी और शुरुआत लाजवाब की है। पिच से भी थोड़ी सी मदद मिली है, पिछली गेंद बिल्कुल सुर्रा हो गई थी।
4 बॉल 2 और आप देख रहे हैं अब दायरे के अंदर पहरे को और मजबूत कर दिया गया है। स्लिप में भी खिलाड़ी तैनात किया गया है। 4 बॉल 2 वीरेश पाटिल सामना करेंगे वैभव का। 3 बॉल 2। अब ये मैच में जान है। एक बीच में ऐड आता था इस सीमेंट में जान है, मुझे ऐसा लग रहा है ये मैच में भी जान है। अब 3 बॉल 2 और इस मैच में जान फूंक दी है गेंदबाज वैभव ने। कमाल की गेंदबाजी, पहली गेंद थोड़ी शॉर्ट रखी थी, उसके बाद गेंद नीची रही और ये गेंद अतिरिक्त उछाल लेकर आई थी। अच्छी रफ्तार के साथ भी बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा नियंत्रण उन्होंने दिखाया है और अच्छी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि मैच छोड़ा नहीं है। हुजैर अपने गेंदबाज को कह रहे होंगे वैभव 2 अच्छी गेंदें और डाल दे, 1 बॉल 2 लेके आ। अगर मैच टाई होता है तो सुपर ओवर के जरिए डिसीजन आएगा। 3 बॉल 2 वैभव और वीरेश। यहां पर बहुत अच्छा धकेल दिया, 1 रन लिया है, यानी कि अब 2 बॉल में 1 रन चाहिए। क्या इक्वेशन है। मेरे ख्याल से जो हमने पहले बताया था कि शायद ये इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन मैच हो सकता है और अब मैं पूरी तरह से ये मैच से मुतासिर भी हूं और मुतमैन भी हूं कि इस तरह के मुकाबले बहुत कम होते हैं। 2 बॉल 1। वी फॉर वीरेश, वी फॉर वैभव, वी फॉर विक्ट्री। कौन पहनेगा विजय माला। मैच का नतीजा कुछ भी क्यों ना हो हरीश जी, यहाँ पर तारीफ तो बनती है गेंदबाज वैभव की। जिस तरह से उन्होंने कठिन परिस्थितियों में गेंदबाजी की है इस आखिरी ओवर में, हालांकि उनका काम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, मैच को टाई कर सकते हैं। अगर ये समय के मामले में सहयोग करें। 2 गेंदों पर 1 रन, 1 गेंद पर 2 रन, 1 गेंद पर 1 रन, जितना आसान दिखता है उतना होता नहीं है। चौके छक्के की जब ज़रूरत होती है तो बल्लेबाज के मन में दुविधा नहीं रहती है, लेकिन जब इस तरह का इक्वेशन रहता है हरीश जी तो बल्लेबाज के मन में दुविधा भी रहती है, क्योंकि उनके सामने कई सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। देखिए 1 बॉल 6 में क्या होता है, आंख बंद करके हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, लेकिन 1 बॉल 1, 2 बॉल 1, यहाँ पे कॉमन सेंस है। कुमार गुंड के पास स्ट्राइक, सेट बल्लेबाज है, दोनों भी सेट बल्लेबाज है, लेकिन कड़ी परीक्षा ली गई पहली 4 गेंदों पर वीरेश पाटिल की। गेम को स्टार्ट किया जाए प्लीज। फारूक भाई वहां पर बता रहे हैं दोनों टीमों को गेम को स्टार्ट किया जाए। क्या खूबसूरत मौसम है और हमारे डीजे सुमित आ चुके हैं। मौसम है गाने का, देखे अब ये मौसम है जीतने का। 2 बॉल 1। और इसके साथ ही विजयी मोहर लगाते हुए सोना देवी विहान मीत कुमार फिनिश लाइन को पार करती हुई 7 विकेट से ये मुकाबला जीता। लेकिन उतना ही क्रेडिट मैं यहाँ पर देना चाहूँगा टीम राजस्थान रॉयल्स को, जिन्होंने इस विजय को मुश्किल बनाया। रास्ता भुलाए, सुनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। तो आइए मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए हम आगे चल रहे हैं। हेलो आइए अब द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन। तो अब हम उन्हें उन प्लेयर्स को सराहेंगे जिन्होंने बहुत 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 उम्दा खेला है। मैन ऑफ द मैच, अब ये खिताब देने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं BC4 और अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स भिवंडी प्रीमियर लीग सीज़न 2, जिसके आयोजक है पायनियर स्पोर्ट्स और BC4। अभी अभी जो तीसरा मुकाबला ख़त्म हुआ है उसका मैन ऑफ द मैच अवार्ड अब हम देने जा रहे हैं। और उसके पहले मैं हमारे जो मेहमान हैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। रज़ी कुवारी साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा हमारे साथ जुड़ जाएं। शादाब कोटकर SK स्पोर्ट्स हमारे साथ जुड़ जाएं। विराज चोरगे ओनर ऑफ बालाजी ग्लोबस और जीतू मनेरकर साहब
इनसे भी प्रार्थना है कि हमारे साथ जुड़ जाएं। मैन ऑफ द मैच है राजू बोगा, 2 ओवर 20 रन 2 विकेट। राजू बोगा जी हैं हमारे मैन ऑफ द मैच, और अब उन्हें कुछ बहुत ही खूबसूरत प्राइजेस से नवाजा जाएगा। आइए जीतू जी, विराज भाई, आइए रजी कुवारी साहब और शादाब कोटकर साहब। राजू बोगा मैन ऑफ द मैच। आइए राजू, आपको सबसे पहले हम यहाँ पर तोहफा देने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले विराज सोरगे इनसे प्रार्थना करूंगा कि एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये खूबसूरत मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी, इसके अलावा एक गिफ्ट पैक जीतू मानेरकर साहब इनके हाथों हम देने जा रहे हैं। मैं शादाब कोटकर साहब से गुजारिश करूंगा द ड्रीम होम मेड का ये केक का गिफ्ट हैम्पर, मीठा स्वाद, विजय का मीठा स्वाद आप चखिए। क्या बात है। और लापास बुटीक के अनीस अंसारी और वसीम अंसारी रियल स्टील के ये गिफ्ट हैम्पर का शर्ट रजी कुवारी साहब दे रहे हैं, आरके फ्रीट और एमजे स्पोर्ट्स। आइए राजू, कुछ गुफ्तगू करते हैं आपके साथ। राजू, बहुत दिन आप क्रिकेट से गायब हुए, लेकिन जब आए और धमाकेदार आपकी एंट्री हुई और ये बीपीएल खेलकर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? पहली बात तो एक प्लेजर है कि बीपीएल हो या अल्ताफ भाई का कोई भी टूर्नामेंट हो, ये खेलना एक प्लेजर है और उसमें मैन ऑफ द मैच लेना एक बहुत बड़ी बात है हर प्लेयर के लिए। तो इट्स ओवरवेलमिंग प्लेजर फॉर मी। राजू, एक और चीज़ आपने गौर की होगी कि आप का जो कमिटमेंट है, जो पहले था आज से 12-15 साल पहले, वो आज भी है। ऐसी क्या वजह है कि आपका जो कमिटमेंट है वो हमेशा 100% रहता है? क्या करते हैं आप? एक्चुअली जो हमको ट्रेनिंग दी गई है, जो हम लोग सीखे हैं, उसकी बदौलत है ये सब, बाकी कुछ नहीं बोल सकता मैं। जिसने सिखाया है उसको लाख लाख और मतलब 100 विशेस फॉर हिम हु हैड टॉट अस टू प्ले लाइक दिस एंड नेवर एवर क्विट द गेम। प्रेरणा, योर क्वेश्चन। जी, मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी एथलेटिक फिजिक एक मेंटेन करके रखते हैं, और मैंने आपको बॉलिंग करते हुए देखा। क्या बॉलिंग की आपने, मतलब सामने वाले के तो धुरंधर उड़ गए, छुट्टे छुड़ा दिए बिल्कुल। तो ये कैसे मेंटेन करते हैं आप, क्या क्या करते हैं इस फिजिक को मेंटेन करने के लिए, इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए? एक्चुअली पहली बात तो अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स खेलना है तो यू हैव टू बी फिट, कि आप एक ग्राउंड पे आके 2 घंटे तो भी आप खड़े रह सको, उतना तो फिट रहना चाहिए। तो वो पहला मोटिवेशन रहता है हर एक के लिए और मेरे लिए भी, कि ऑलवेज फिट टू बी व्हेन वी कम टू द ग्राउंड यू हैव टू बी ऑलवेज 100% फिट। तो उसके लिए बहुत सारा मतलब बहुत सारा नहीं, थोड़ी मेहनत है, और बहुत मेहनत नहीं हो रही है, थोड़ी मेहनत हो रही है। इसके लिए बहुत दिनों बाद मैन ऑफ द मैच मिला है। एक अलग लेवल की एनर्जी लेकिन आप लेके आते हैं ग्राउंड पे, जैसे कि हमने देखा है। मोटिवेशन कौन है आपकी? मोटिवेशन तो वो लोग हैं जो लोग ने बोला कि बोगा खत्म हो गया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ड्राई फ्रूट में काजू और भिवंडी के क्रिकेट में बोगा राजू, इसका कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल, और इतनी अच्छी और इतनी बड़ी बात सिखा के गए हैं हमें कि अगर आपको कोई नीचा दिखाता है तो नीचे गिरने की जगह और ऊंचा उठ के दिखाना इन्हें आता है, भिवंडी के प्लेयर्स को, हमारे स्पेशली राजू बोगा जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का। आइए अब सीधा चलते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ, जहां पर हमारे सीनियर कमेंटेटर सिद्दीक बाबे साहब आपके साथ जुगलबंदी के लिए तैयार है। शुक्रिया। थैंक यू हरीश एंड थैंक यू प्रेरणा। बीपीएल की सुहानी शाम आप सभी के नाम। आज का आखिरी मुकाबला आप देख रहे हैं बालाजी ग्लोबस और आगड़ी राजा के बीच में। पहली गेंद इस मरतबा ज़्यादा सफल होकर खेलने की कोशिश और रन बैट्समैन चुराते हुए बाई के रूप में गेंदबाजी कर रहे हैं सुहास पवार और बल्लेबाज है सूरज केने। अब केतन मात्रे, अजय घरत सदाबहार कमेंटेटर सुहानी शाम में मेरे साथ। अजय वेलकम। शुक्रिया सिद्दीक जी। 2 जीती हुई टीमों के बीच का ये मुकाबला है। शुरुआत लाजवाब की है दोनों टीमों ने। ये बैटल अच्छा है। सुहास पवार केतन मात्रे को खींच के मारा है, क्या शॉट खेला है, लॉन्ग ऑन पे फोर्सिंग स्ट्रोक 4 रन। ये खिलाड़ी तो कुछ
अलग ही फॉर्म में नज़र आ रहा है। पहले मैच में अर्धशतकीय पारी खेली थी, अनबीटन वो भी, और जहाँ से पारी को छोड़ा था वहीं से शुरुआत की है। बहुत जल्दी गेंद की लेंथ को ताड़ लिया था, और ये देखिए थोड़ी छोटी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, गेंद को टर्न होने दिया और स्विंग किया ऑन साइड में, बिल्कुल गैप में 4 रनों के लिए। और ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि पहले मैच में सुहास पवार ने भी तो 3 विकेटें ली। कभी इस तरह मेरे हम सफ़र सभी चाहते नाम मेरे नाम कर, अगर हो सके तो कभी कहीं मेरे नाम भी कोई शाम कर। बीपीएल की सुहानी शाम, ओ क्या खींच के मारा है, चाबुक आउट ऑफ पार्क, टाउरिंग 6। गजब का स्ट्रोक। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर छाप पड़ चुकी थी 6 रनों की। भले ही पहले मैच में 3 विकेट्स चटकाए थे 12 रन देकर 2 ओवर में गेंदबाज सुहास ने, लेकिन ये अलग मैच है और अलग चुनौती है उनके सामने, क्योंकि इनफॉर्म बैट्समैन उनके सामने है। इस बार लेंथ उतनी भी छोटी नहीं थी, लेकिन इस बल्लेबाज के पास काफ़ी समय है शॉट्स खेलने के लिए। ये देखिए खींच के मारा, हवा के साथ साथ घटा के संग संग। हवा तो बीपीएल की चल रही है सारे टेनिस क्रिकेट में। आप सभी का भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में हार्दिक स्वागत। सुहास पवार, अच्छा बॉलर बैक ड्राइव, मेरे ख्याल से मौका ज़रूर था। कुड भी इस तरह के कैचेस लिए नहीं जाते हैं, ने पहले बाउंस पे गई थी। हालांकि इस एंगल से बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से रिएक्शन आया गेंदबाज का, ऐसे लगता है कि शायद ये कैच था। फ्रंट ऑन व्यू देखते हैं। यस आई थिंक ड्रॉप। बढ़िया वापसी। ये गर्मा गर्मी क्रिकेट की आप देख रहे हैं, ये नोकझोंक बल्लेबाज की और गेंदबाज की, दोनों आइकॉन प्लेयर है। बिल्कुल बल्लेबाज के सामने से गेंद को घुमाया है वहां पर सुहास पवार ने। जबरदस्त नोकझोंक